Hyderabad. I'm a founder at Preceptors Education Services Private Limited, where PhD faculties come to schools of 9th, 10th, 11th, and 12th and make them to know what is a branch is about. This is the main concept. Thank you. The name is PRCEPTORS, right? PRECEPTORS. PRE. Yeah. Okay. Preceptors. Okay. Preceptors. Receptors in the mind Okay. is the receptor. Preceptors. Preceptors. I see. Okay. Abhishek, introduction. Hello, myself Abhishek Kumar, founder of Ajanta Group. Basically, I work in the field of LED light and robotics. Yeah. Thank you. Sejal. My name is Sejal Zan and I'm currently working as country manager and learning while traveling. Thank you. Thank you. Nandu Anand. Yes, sir. I'm Anand Georgie. I'm 19. Recently, I have studied my 12th standard in Telangana, Hyderabad, and now I'm currently studying my BSc Agriculture second year in Dehradun, Uttarakhand State. Thank you. Ravi. Hi everyone, very good evening. This is Ravi Kumar from Bangalore. I am by profession into business development and my expertise into building automations and IoT products. Thank you. Thank you. Ujjwal. Ujjwal, are you there? Okay. Saurabh. Hi, I'm Saurabh and I'm an entrepreneur. I have my startup called Clear Depot. Thank you. Thank you. Atul sir, please. Namaste. My name is Atul Kumar and Yeah. I'm an entrepreneur and I run many non-profits for entrepreneurs. Okay, thank you. Okay. So today's topic is, continuation from yesterday's topic, that what type of startups are investable, or what is the, let's say, the bare minimum requirement for a startup to at least raise some funding. So let's hear from people what they think. So Abhishek, what do you think? Startup में minimum क्या होना चाहिए कि उसको पैसा मिल जाए? Or I mean, according to you? मेरे ख्याल से मिनिमम का तो कोई लिमिटेशन है नहीं. एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना ही चाहिए शायद मेरे ख्याल से. और जहाँ तक बात है कि हम जो फिल किए हैं फंडिंग के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए. जो भी आपका कंपनी का ऑडिट होता है वो क्लियर होना चाहिए. मतलब टाइम टू टाइम ऑडिट हो गया, जीएसटी फाइलिंग हो गया. और आपका जो मतलब मेरे ख्याल से जो आने वाला फ्यूचर है वो इन्वेस्टर को दिखना चाहिए कि आने वाला 5 साल 10 साल या 2 साल जो भी है वो कंपनी कहाँ तक जा सकता है. ऐसा तो नहीं है कि हम अभी इन्वेस्टमेंट कर दिए अभी इसका मार्केट है. एज फॉर एग्जांपल अभी सैनिटाइजर कोई सैनिटाइजर बना रहा है तो अभी कोई इन्वेस्ट कर दिया और पता चला 1 साल बाद पहले जैसा हो गया. तो उस टाइप से नहीं, मतलब आने वाले इस समय में भी उसका फ्यूचर होना चाहिए. Okay. Ravi, your comment on here, initial comment? So if I say in layman terms, urge of believing for what you are asking should be the priority for any like to get the funding. To explain it more, आपको ये Your दिखाना mic, पड़ेगा मुझे. आपका mic फिर से ये हो रहा है. I think you are touching the mic maybe. Yeah. Is it audible now? Yeah, now better. So urge of believing on the what you are asking for. To be very particular, what Abhishek said कि हाँ कुछ procedures है that is in line, but at the same time एक आपका जो भी idea है या जो भी company into that particular division, so एक complete detailed
एटलीस्ट मार्केट रिसर्च प्लस प्रोडक्ट का रहना चाहिए, प्रोडक्ट और मार्केट रिसर्च, so that you can express and then you can create that urge to believe in your idea that will move forward. So this is my Sure. opening remark. Yeah. Nandan, what do you think? Minimum requirement. I have to listen today. Okay. I'm not having any. But are you like misguided by, But let's say, other people that okay, this much is enough for funding? no, sir. Till now it was not an. Okay, okay. Okay. Atul sir, your comment on this? So the question was, one second, let me refer that question. Bare minimum requirement for a startup to be investable. So number one, a startup has to either still have some revenue, current revenue, even if it's in loss, but it should have some revenue. That's one major criteria which many investors will look at, because if you don't have an investor, don't have a revenue, it means ki whatever you're working on, it might not be sustainable. But in some cases, many startups get invested without revenue is because they're attacking, they are, have a huge number of users or subscribe, like Facebook is a good example. So for a long period, when Mark Zuckerberg started Facebook from in his dorm at Harvard, he did not have much revenue. He had a lot of costs, but not much revenue. It was using the campus infrastructure to develop the website. So a lot of companies did, a lot of investors did want to invest in him. And as you grew up, then obviously you need more server space and you need a team and all of them. They obviously need more money. But initially, many startups will get invested just because of the future potential that this startup is solving a problem, and that problem is likely to scale up at a big scale. So many of the startups, many of the investors, they look for how big the potential is. So they also call it the target addressable market. So if the target addressable market is in billions or millions, then many investors will rush toward the startup. Startup won't have to go to them. But if the startup is doing something very local or hyper local, the startup is solving some local problem in the local colony, then the only investors he will get is his friends and family and fools, as people say. So investable होने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो स्टार्टअप में पैसा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कौन उसके लिए पैसा खर्च करेगा, पैसा आपके स्टार्टअप का क्लाइंट कौन बनेगा. क्योंकि आप स्टार्टअप तो कर रहे हो, लेकिन जिसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो पैसा नहीं दे रहा, मतलब का स्टार्टअप नहीं है, चैरिटी है, वो भी चलेगा. चैरिटी में भी पैसा चाहिए होता है, लेकिन आपके पास खुद का पैसा है और आप कुछ कर रहे हो, लोगों को पानी पिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, या जो भी कर रहे हो, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट अगर आपको कमर्शियली वायबल स्टार्टअप बनाना है, दूसरों से पैसा लेना, इन्वेस्ट लेना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके स्टार्टअप में जो भी पैसा लगाएगा वो पैसा वापस आएगा. तो पैसा वापस कैसे आएगा? स्टार्टअप के प्रॉफिट से आएगा. तो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इन्वेस्टेबल स्टार्टअप्स के लिए. Sure. Okay, Saurav, you have any opening remark? विशाल, क्या है क्वेश्चन? मतलब what is the bare minimum requirement for startup to be investable? I think According to you. फाउंडर. अगर Team. फाउंडर में दम है और आइडिया थोड़ा सा ऐसा आइडिया है जो एग्जिस्ट करता है मार्केट में, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, प्लेन वनीला आइडिया है, वेरी सिंपल, स्टिल एन इन्वेस्टर वुड इन्वेस्ट. अगर फाउंडर में दम है, यू एज अ स्टार्टअप का सक्सेस डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द आइडिया. आइडिया कैन बी अ नॉर्मल आइडिया. 50 लोग दुकान चला रहे हैं, तुम भी दुकान खोल लो, कोई नया आइडिया नहीं है. लेकिन अगर फाउंडर में दम है तो चांसेस ऑफ फंड रेज मतलब डबल हो जाता है, या मतलब मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल फोल्ड हो जाता है अगर फाउंडर में दम है. तो आई थिंक फाउंडर इज माय आंसर. Sure. तो I think तो सौरव ने कहा that what he's saying is
this can be discussed further, that launching something very, very new versus something that is already existing. So there is already some market that is existing for it, and there is, you know, it's like a competition launch, let's say. तो ऑलरेडी कुछ है एंड यू नो उसको थोड़ा सा अलग करके या कुछ बेहतर करके या वैसा ही, और मे बी अलग एरिया में स्टार्ट करके, जैसे लेट्स से उबर ओला फॉर एग्जांपल. सो ओला maybe added few features, outstation and things like that, and maybe more than that, or maybe their technology was slightly different, but you know, it was very similar to what Uber was doing. So it was easy to convince people कि you know Uber, देखिए Uber है already, market इसका capture है, तो ओला स्टार्ट करते हैं, इसको टायर 2 cities टायर 3 cities में खींचते हैं, और जहां जहां उबर नहीं है वहां खींचते हैं, और जहां जहां उबर है वहां भी ट्राई करते हैं. So that would have maybe made people, the investors, comfortable. So let's hear from everyone on this example. So अभिषेक, क्या लगता है, कंपटीशन ज्यादा अच्छा है या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नया ही आइडिया लॉन्च करेंगे ना तो नहीं करेंगे? What do you think? मेरे ख्याल से नया आइडिया वाला इस सही चीज मतलब उतना नहीं है. हम भी जब भी स्टार्ट किए थे तो एलईडी बल्ब से ही किए थे, उसमें तो कोई नया आइडिया नहीं था, लेकिन उसके कारण ही मेरे को बहुत सारा इन्वेस्टर अप्रोच भी किए थे. वो आता अलग है कि शायद मेरा डॉक्यूमेंटेशन या जो भी बोलिए उसमें कुछ कमी रहा होगा, तो वो मेरे को नहीं मिल पाया उस लेवल के इंटरेस्ट में. लेकिन मेरा कंसेप्ट ये रहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि आप पुराना आइडिया को भी कर सकते हैं, उससे पैसे कमाइए, और आप उसका 1%, 5%, 10% जो भी हुआ नया आइडिया की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम अभी अप्लाई कर रहे हैं. जो भी मेरा मतलब सोर्स ऑफ इनकम, उसको कुछ % अपना नया इनोवेशन की तरफ स्पेंड कर रहे हैं. Okay. Atul sir, you have a comment on this competition versus a full-fledged invention, innovation? रिसेंटली मैं पीटर थियल की एक बुक पढ़ रहा था, मैंने उसकी समरी भी ऑडियो भेजा था. उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पीटर थियल ने बोला है कि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी जो शुरू करना चाहता है ना, तो आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसी को थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो, थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हो, तो वो एक स्टेप का स्टार्टअप हुआ. और पीटर थियल का कहना है कि वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करता है कि कम्प्लीटली नया चीज है. वो चीज थी ही नहीं, वो इंडस्ट्री नहीं थी, वो कंपनी नहीं थी. और उनके जितने भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट हुई है, वो पेपैल के फाउंडर थे, टेस्ला के इन्वेस्टर थे एलॉन मस्क के साथ. तो पीटर थियल, एलॉन मस्क, इन सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनी में, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि उन्होंने वैसी चीजों में इन्वेस्ट किया जो कि एक नई इंडस्ट्री और नई क्रिएट कर दे. चाहे वो बैटरी वाली कार की बात हो टेस्ला को, चाहे उबर हो, या इस तरह की जो कि इंडस्ट्री डिफाइनिंग टाइप के स्टार्टअप्स. तो उसमें उनका कहना है कि 10 लाइक ए न्यू, उनकी जो किताब है 0 to 1, तो 0 to 1 में उन्होंने कहा कि 0 to many जो बहुत सारी जो चीज है ना, वो तो बाकी सब करते हैं, पर 0 to 1 है कि 0 और 1 में बहुत ड्रामेटिक डिफरेंस है कि 0 था, अब आपने 1 नया कुछ क्रिएट कर दिया. बाकी जो कर रहे हैं आप 1, 2, 3, 4 बना रहे हो, वो अलग चीज है. तो अलग अलग स्टार्टअप इन्वेस्टर्स का अलग अलग थीसिस होता है. कुछ लोग का मानना होता है कि नहीं, मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिस कंपनी में ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस है, रेवेन्यू है और टीम है, सब कुछ है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा. कुछ का कहना है कि नहीं, मुझे आइडिया ऐसा दमदार चाहिए कि वो आइडिया बिलियन की संख्या पहुंचे. तो अलग अलग इन्वेस्टर्स का अलग अलग प्रेफरेंस होता है. Sure. तो अभी अगर ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ उबर, ओला या आई मीन अदर एग्जांपल्स, लेट्स से जियो वर्सेस अदर सिम कार्ड्स. सो द क्वेश्चन इज मोर कि जैसे उबर आया जब, तो उबर को समझाने में शायद ज्यादा दिक्कत हुआ होगा कंपेयर टू ओला, कौन है, क्या है, कैसे है. तो अगर इसको यू नो फ्रॉम अ फाउंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू लें या टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो मार्केट में या लोगों को समझाना, आई मीन मैंने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है ये चीज, दैट इफ
if a gap is very small, then it's easy to fit in the market and easy to for people to adapt. And I think I'm talking more from Indian context. I think foreign mein thoda sa people have more of a innovative mindset and they accept innovation right away. India mein thoda sa follower mentality भी है. तो अचानक से कुछ नया लोगों को दिख जाता है तो people have a hard time understanding and accepting it, and probably it gets rejected or not well accepted. Whereas if it's a small gap, like everything was there and just slight change, then maybe it's easily absorbed by people. So ispe Saurav, what do you think in this regard? I mean, small gap versus big gap. विशाल, if I have understood your question rightly, आप बोल रहे हैं कि अगर गैप ज्यादा है तो कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाता है मुश्किल इंडिया में होता है। खासकर। ओके, मतलब बहुत इसको कुछ दो समझाना तरीके पड़ेगा उनको फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। बट इसको अगर दूसरे वे में देखा जाए तो जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि डेल्टा अगर हाई होगा तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी हो सकता है टाइम टेकिंग हो, लेकिन अगर डेल्टा हाई होगा, इवन इफ इट इज नॉन कन्वीनियंट, सॉरी, इवन इफ इट इज कन्वीनियंट, मतलब इवन इफ इट इज अ बैड प्रोडक्ट बट इट इज कन्वीनियंट, तो बहुत जल्दी अडेप्टेबिलिटी या वो वायरल होगा। फॉर एग्जांपल irctc.co.in, बहुत प्रॉब्लम्स है सबको, लेकिन इट इज अ वेरी हाई डेल्टा एज कंपेयर टू लोग लाइन में लग के जो ट्रेन का टिकट लेते थे। तो इवन द फैक्ट कि आपको ट्रेन मिलता नहीं है, सारे अनअवेलेबल होते हैं, बफरिंग होता रहता है, टाइम टेकिंग है, यूआई इतना अच्छा नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल डोंट हैव अ चॉइस। वो नया था लेकिन वो कामयाब हो गया डिस्पाइट ऑल फ्लॉज। सो इसको दो तरीके से देख सकते हैं, जो आपका पॉइंट है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं भी है लेकिन कन्वीनियंस बहुत हाई है और मोनोपोली टाइप ऑफ चीज है, जैसे ओला में, जैसे जब ओला आया इंडिया में तो कोई ओला था ही नहीं, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, शायद लोग इतने मे बी स्मार्टफोन सेवी नहीं है, आई डोंट नो है, लेकिन स्टिल वो आज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी ओला चल रहा है। तो वहां पे तो लोग नहीं यूज करते थे लेकिन यूज कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो स्मार्टफोन सेवी नहीं है, लेकिन उनको ओला से जाना है और मैं बुक करता हूं उनके बिहाफ पे। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको कोई जरूरत नहीं है या उनको यूज करना नहीं आता है, somehow they are using Ola app through their kids or through somebody else. So this is what I have to say. Okay. Yeah, Atul sir, you have any comment on this? तो उसपे मेरा ये कि ओला ओरिजिनल था नहीं, उबर को कॉपी करके ओला बना और इस तरह के बहुत सारे। तो कॉपी करना हमेशा स्टार्टअप्स के लिए आसान होता है, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में कॉपी ही से स्टार्टअप्स करती है। लेकिन कॉपी करना दो तरीके से होता है कि आप उसके जो आइडिया को कॉपी किया कि अच्छा लोगों को ऑन डिमांड कार की सर्विस चाहिए, तो वो एक आइडिया था, उबर ने क्रिएट किया और ओला ने उसको कॉपी किया और फिर इंडिया में और पूरी दुनिया में और भी अलग अलग कंट्रीज में सिमिलर आइडियाज बने हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है इसमें कि स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज सारे लोग ओला को अडॉप्ट तभी करेंगे कि ओला के पास बहुत सारे जो ड्राइवर्स है ओला के वो भी एक इनफ संख्या में है ताकि कन्वीनियंटली मिल जाए। तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि ज्यादा पैसेंजर नहीं है तो ड्राइवर लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेंगे और पैसेंजर ड्राइवर नहीं है तो पैसेंजर नहीं मिलेंगे, दोनों केस। तो कभी कभी मार्केट क्रिएशन वाला काम आता है कि कुछ बहुत, इसीलिए बहुत कुछ समय तक जब उबर काफी हिट हो गया तो ऑब्वियसली आइडिया लोगों को समझ में आ गया। सिमिलरली जो सौरभ ने एग्जांपल दिया ओला का, तो ओला जब आया उसके पहले क्या था, टैक्सी था, प्रीपेड सर्विसेज था एयरपोर्ट पे या ट्रेन स्टेशन पे, बट वो लोग काफी कुछ मोनोपोली टाइप प्रैक्टिसेस करते थे। पता नहीं आपको है कि जो एयरपोर्ट का टैक्सी वाला है वो आपको सही जगह पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, सेफ्टी है कि नहीं है, और मनमाना पैसा ले लेगा। तो उस चीज को ओला और उबर जैसे लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया आकर।
तो ये डिसरप्शन वर्ड बहुत यूज होता है स्टार्टअप वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से यही चीज है कि आप किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को आप डिसरप्ट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए अगर आपने उसके लिए आपके पास काफी पैसा भी होना चाहिए केवल, और टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके बाद डिस्कस। अदरवाइज बना बनाया इंडस्ट्री है टैक्सी वाली सर्विसेज का, या एक एग्जांपल न्यूयॉर्क से देता हूँ। न्यूयॉर्क में टैक्सी जो है ना मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, ओलिगोपोली है, तो टैक्सी के लाइसेंस लेने के लिए, पीली वाली टैक्सी होती है, तो कोई भी हॉलीवुड फिल्म देखिए तो न्यूयॉर्क का तो देखोगे कि ये येलो कैब हुआ करते थे पुराने जमाने में, तो दे हैड ए मोनोपोली, और उसका लाइसेंस लेने के लिए येलो कैब के लिए मिलियंस में मिलता था और होता था। बट जैसे ही उबर जैसी चीजें आ गई तो उसने डिस्टर्ब कर दिया उस पूरे टैक्सी बिजनेस को। और तो वही है स्टार्टअप वर्ल्ड में कि आप देखना पड़ेगा कि आप मार्केट मेकर हो, नया मार्केट बना रहे हो, या मार्केट चैलेंजर हो, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को चैलेंज कर रहे हो, या आप एक नई फीचर ऐड करो, सेम चीज जो ऑलरेडी थी बट आप उससे थोड़ा सा बेटर फीचर या सस्ता या कुछ और ऐड कर रहे हो। तो देखना पड़ता है कि हम स्टार्टअप वर्ल्ड में किस स्पेक्ट्रम में किस स्पेस पे प्ले कर रहे हैं। नया प्रोडक्ट, नया सर्विस लोगों को ट्रेन उसमें, क्योंकि आपका काम लोगों को, कंज्यूमर को ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। उबर ने या ओला ने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया कि कैसे आप एक फोन, जैसे कि अपने पापा का एग्जांपल दिया सौरभ ने, कि ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, ये ऐप डाउनलोड करो, फिर ऐसे करो वैसे करो। तो ट्रेनिंग का काम जो इनिशियल अर्ली जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका काम होता है मार्केट को ट्रेन करना कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कन्वीनियंट है, आसान है। फिर बाद के जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उस ट्रेनिंग, उनको ट्रेन नहीं करना पड़ता, उनको बताना पड़ता है कि हाँ अब जैसा उबर था या जैसा ओला था वैसा ही एक और है, लेकिन उनको उसका फायदा मिला कि ट्रेन नहीं करना पड़ा। घाटा ये है कि उनको compete करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में वो जो उबर या ओला जो था ना वो एक वर्ब बन गया। कस्टमर का मतलब, अच्छा टैक्सी पहले होता था, टैक्सी का मतलब उबर, अच्छा, या टैक्सी का मतलब इंडिया में ओला, तो वो ज्यादातर स्टार्टअप का ड्रीम होता है। जैसे गूगल मतलब सर्च, तो वो जो मोनोपोली टाइप की आपकी मार्केट में ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लोग देते हैं, और वो बहुत कम लोगों के लिए संभव है। शॉपिंग मतलब अमेजन, या सर्च मतलब गूगल, तो वो वर्ब बनाना इज द ड्रीम ऑफ ऑल entrepreneurs in my view. So Ravi, you have any comment on this? No, on this almost point has been covered. I'll add on. Okay, sure. So coming to this investable startup again, there are a lot of students who are always thinking that I will do something new, I will do something new, I will do something new, and then they try to do something new, and usually what I have seen is that something new is not so understood by people, and eventually within 4 to 6 months या जो भी है, मतलब within a year maybe, lot of these ideas actually shut down, या कॉलेज तक ही रह जाता है, फिर कॉलेज के बाद सब अपने अपना रास्ते चले जाते हैं। और वो तो जो हम ये देखते हैं कि 90% of the startups fail, या 99% या 95 whatever, there is another out of these startups there is probably these startups are also like let's say 20% of the idea, there were 80% of the idea और भी था जो किक ऑफ ही नहीं हो पाया कभी, मतलब वो जस्ट एक कंपटीशन तक ही रह गया, या जस्ट एक हाय हेलो टाइप रह गया कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, बट उसमें कुछ हुआ नहीं। So I see that is it's kind of like competitive exam से compare करें तो let's say at the top institute some people have that dream, they go, और जो भी है बाकी लोग भी चले जाते हैं, बट बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं कि चलो मुझे नहीं करना है मेडिकल, मुझे नहीं करना है इंजीनियरिंग, एंड देयर इज अ लॉट मोर पीपल हु आर इन दिस कैटेगरी एक्चुअली। तो स्टार्टअप के आइडियाज के बारे में व्हाट या maybe Ravi you can only add, do you think there are a lot of ideas that just doesn't even kick off because of maybe this market acceptance, या most founders are maybe seeking some kind of support, but वो support नहीं मिलता है, and it's a behavior problem also कि चार लोग जब तक वाह वाह नहीं करे तब तक लगता है कि कुछ नहीं कर रहे इस टाइप से, and ये accept करना बहुत hard होता है कि सब लोग आपके against चले गए, and then you move on. What do you think, Ravi? So very good question विशाल, और इसमें मैं 2 पॉइंट रखूंगा very clearly.
एक फिनेंशियल्स मार्केट के बारे में बोला जाता है, ऐसा मतलब दिस इज द मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज बीइंग सेड कि फाइनेंशियल्स मार्केट में व्हेन यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो प्लीज टेक द एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल विच इज गुड। आप मतलब फॉर एग्जांपल आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, पर टुमारो यू गो डाउन एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट हॉन्टिंग यू कि अरे लॉस हो गया या फिर मतलब प्रॉफिट हो गया, एंड दैट विल नॉट बी लाइक वेरी लेजिटिमेट, और एक ब्रेक इवन भी नहीं जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, दैट काइंड ऑफ। सो बेटर टू इन्वेस्ट इन फिनेंशियल विथ लिटिल बिट ऑफ एटलीस्ट एक्सपर्टीज, जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज है उनका एक डायरेक्शन लेना चाहिए या फिर उनसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, और बी इन दैट फोरम वेयर यू कैन गेट द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सेम स्टार्टअप में भी है, which I feel, this is my view, Mhm. in this segment, that is what I talked about these things prior to this discussion also. If you want to do startups, it's a journey, it's not things like once you are getting with any idea it will start on and then somehow that is not working out, it will go down, because you have to make your mindset for like to come into this journey. एक बार आप इस जर्नी में आ गए then you have to be prepared for your mindset। एक सेकंड चीज है कि जब आप इस जर्नी में आ रहे हैं तो ट्राई एंड बी कोलैबोरेट विथ मोर एंड मोर पीपल हु आर ऑलरेडी देयर इन दिस जर्नी, सो दैट दे कैन कीप यू लिफ्टिंग। मे बी एक मोटिवेशन भी रहता है और एक डीमोटिवेशन भी रहता है, एक कॉम्पिटिटिवनेस भी रहता है पर एक कोहेसिवनेस भी रहता है, एक कोलैबोरेशन भी रहता है। तो समटाइम्स ये भी होता है कि व्हेन यू गो डाउन बिकॉज ऑफ योर कोलैबोरेशंस विद द पीपल ऑफ लाइक माइंडेड यू विल बी अपलिफ्टेड। और ये एक प्रोमिनेंट थॉट भी है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ द पर्सन, बट इट इज लाइक कि बी इन दी लाइक माइंडेड पीपल बट ऑलवेज बी इन दी टाइप ऑफ पीपल हु आर either above you in terms of your mindset or like skill set, like that to your horizons. You should always be engage yourselves into that kind of community where you can uplift yourself rather than putting yourselves into the downgraded community, जहाँ पे आप अच्छे हैं। और अच्छे आई मीन डोंट मीन टू से कि अच्छे इन द सेंस सोसाइटी वाला अच्छा, आई मीन टू से कि आपके पास आइडिया जनरेशन के पावर है, आपके पास स्टार्टअप करने के पावर है, एंड देन यू गो एंड मिंगल विद द पीपल हु आर नॉट डूइंग इट, सो डेफिनेटली दे विल कीप सेइंग यू इन टर्म्स ऑफ कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका कोई ये नहीं है वो नहीं है। दिस विल बिकम अ डीमोटिवेटेड पॉइंट ऑफ व्यू rather than you as a person associate with the people who are already into this kind of segments and who are doing it, and you can get motivations from there। जैसे कि हम लोग कल अभिषेक मेंशन कर रहा था कि जब स्टार्टअप्स की न्यूज आती है फंडिंग को लेके, सो आई फील मोटिवेटेड एंड वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीड अबाउट दोज पीपल जो अभी कर रहे हैं या फिर आगे कर रहे हैं, आइडिया जनरेशन पे भी है, एंड कीप एसोसिएशन विद दोज काइंड ऑफ पीपल सो दैट आई कैन बी लिफ्टेड ऑन एज फार एज माई मोटिवेशन और मूड इज कंसर्न। सो दैट इज माई पॉइंट। Vishal, there is a reason why Silicon Valley has maximum number of unicorns. तो उन्होंने कहा, जो रवि ने बात कही संगति वाली बात है और कुछ नहीं है। करेक्ट, सही बात। हाँ, तो वो संगति वाली जो बात है, सो यू नो इट कम्स टू, जैसे कि हम लोग यू नो वी ऑलवेज से एट टाइम्स कि कोई साथ नहीं दिए तो एकला चलो एकला चलो, बट आई थिंक कहने सुनने में तो एकला चलो अच्छा लग गया, बट एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट का मार्केट फिट तो होना चाहिए ना, कुछ मतलब आपके कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपका प्रोडक्ट को ट्राई भी करें एटलीस्ट। सो एकला चलो वाला कॉन्सेप्ट रियली चलता है, आई मीन, और इज इट अ वेरी रोजी स्टोरी? इस पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। यस सर, आप सौरभ ने बोलिए। एग्जांपल दिया ना सिलिकॉन वैली का या जहां का भी, तो आपको मार्केट का साइज भी देखना पड़ेगा। आप, मैं एक छोटा सा स्टार्टअप खोल रहा हूँ, कॉफी का ही स्टार्टअप, कॉफी बेचने का स्टार्टअप कर रहा हूँ, या चश्मा बेचने का स्टार्टअप खोल रहा हूँ, तो मैं पैलो आल्टो में खोल रहा हूँ क्लियर देखो जैसा कोई स्टार्टअप, चश्मा का स्टार्टअप, तो मेरा पर यूनिट जो है ना काफी बड़ा होगा। जो काम वहां मैं 100 रुपए में चश्मा बेच रहा था, यहाँ मैं $100 में बेच रहा हूँ, तो पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट रेवेन्यू जो है कॉस्ट मतलब रेवेन्यू में ज्यादा होगा, मार्जिन ज्यादा होगा, मतलब कि टोटल रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पे के स्टार्टअप्स थोड़ी जल्दी सक्सीड कर जाते हैं। एक तो वो एकला चलो वाला भी है, उस पे तो सिंपल है। मैं एकला चलो का उल्टा एक फ्रेज मैं बहुत यूज करता हूँ कि वी इज ग्रेटर देन मी, कि आप केवल खुद का चाहोगे कि मैं अपने स्टार्टअप बन जाऊं, मैं सबसे अमीर बन जाऊं,
मोहल्ले का सबसे बड़ा चौधरी मैं बन जाऊं, तो हो सकता है आप उस परिवार से आते हो या आप लकी हो या बहुत स्मार्ट हो, बहुत सारे कारणों से बन सकते हो, लेकिन आपको रियली बड़ा बनना है तो आपको साथ में चलना पड़ेगा, इकोसिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा और इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आज मैं अभिषेक जी का एग्जांपल देता हूँ, तो अभिषेक जी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने स्टार्ट किया, एजुकेशन के फील्ड में उनका स्टार्टअप है, रोबोटिक्स के फील्ड में स्टार्टअप है, बट डे वन से उन्होंने अपने उस इकोसिस्टम को बिल्ड किया। उनके जो काम करने वाले जो लोग थे, अगर वो लोग उनके साथ जुड़ रहेंगे तभी जुड़ेंगे। उनको लगे ये कंपनी अभिषेक की नहीं हमारी भी है, हमको भी अपना ऐसा लगे। उनके जो 20 एम्प्लॉइज हैं उन 20 को ये लगे कि वो अपने और 10 लोगों को खींच के लाएंगे, और प्लस वो अपने फैमिली सोसाइटी में हर जाके उनके जो रोबोटिक्स को सोल्यूशंस को है या जिस चीज को हर जगह बताएंगे। प्लस लोकल यूनिवर्सिटी में उनको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, जैसे पटना में है तो उनको एन कॉलेज हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, तो लोकल का यूनिवर्सिटी से उनको एडवाइजर्स या सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, दूसरे जो स्टार्टअप्स है उस कम्युनिटी में उनका उठना बैठना हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें मैटर करती है। क्योंकि अकेला चलो में कोई हर्ज नहीं, शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है, बट अकेला चलो तभी काम आता है कि आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत आसान है अकेला चलो। अगर आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप घर में बैठे बैठे आपने फेसबुक जैसा कोई बड़ा बना दिया या गूगल बना दिया, स्टैनफोर्ड में बैठे बैठे लैरी और सर्जेई ने गूगल बना दिया, तो चलेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास में उतना ये नहीं होता है कि वो खुद ही सेल्स भी हैंडल कर ले, मार्केटिंग भी कर ले, प्रोडक्ट भी बना ले, सब कुछ खुद कर ले। तो उसके लिए मैं जो बोलता हूँ कि आप कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनरशिप खोजो। आपको प्रोडक्ट बनाना अच्छा आता है या आप अच्छे इंजीनियर हो तो आप एक सेल्स वाले बंदे को अपने साथ जोड़ लो, आप सेल्स मार्केटिंग वाले को जोड़ लो, आप दूसरे किसी और को जो कि फाइनेंस अच्छा समझता है, तो टीम बना के चलोगे ना तो मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा कोई भी स्टार्टअप। और वही सीक्रेट है, सिलिकॉन वैली में टीम बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि मैंने कुछ शुरू किया तो पड़ोसी से पता चला क्या वहाँ भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, मुझे इंजीनियर है तो पड़ोस वाले स्टार्टअप से यार मुझे कुछ इंजीनियर चाहिए रेफर कर दो, वो दे देगा, या अपनी टीम से देगा, चलो क्या कर रहे हो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री है, चलो हम लोग मिल के करते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी और टीम मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सक्सेसफुल जो स्टार्टअप्स का सब में देखिए कॉमन रहा है। स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वॉजनियाक था, जितने बड़े बड़े जो दुनिया के हुए ना, इवन बिल गेट्स के पास पॉल एलन था, तो जितने बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हुए हैं उन सब के पास एक अच्छा पार्टनर मिलना बहुत जरूरी होता है, मेरा ऐसा मानना है। अभिषेक तुम क्या बोलते हो ये एकला चलो वाले कॉन्सेप्ट के बारे में? नहीं एकला चलो, हम दो चीज कहना चाहेंगे। पहले तो था एक कि मतलब ओल्ड आइडिया को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए कि लोग न्यू आइडिया पे सोचे। कि क्योंकि एक चीज देखते हैं इंडिया में कि मतलब इंडिया का जहाँ पर भी हम अपना पिच देने भी जाते हैं तो वहाँ पे अब इस चीज को मेंशन करते हैं कि इंडिया क्या सोचता है कि किसी भी चीज को हम परचेज कर लेंगे, मतलब बाय टाइप का, कोई चाइना में बन रहा है, कोई अमेरिका में बन रहा है, कोई जापान में बन रहा है, तो वहाँ बन रहा है, हम परचेज कर ले रहे हैं। इंडिया कभी भी अपना जल्दी यहाँ का स्टैंड बोलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं करता है। उसी का आज रीजन है, हम रोबोटिक्स में एग्जांपल दे रहे हैं कि 260 रुपए का ऑर्डिनो आज हम 550 रुपया में खरीदना पड़ रहा है। आखिर उसको भुगतता कौन है? आम पब्लिक। तो न्यू आइडिया भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीज हम लोग जैसा स्टार्टअप के लोग ही इसको सक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नया आइडिया पे सोचेंगे लोग नहीं, सही है पैसा कमाने के लिए या जो भी हुआ, ओल्ड आइडिया को भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ न्यू आइडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ करना है, मतलब चाहते हैं समाज में देना। सेकंड चीज में मेरा कहना था कि एकला चलो या जो भी है, जो भी आदमी स्टार्टअप में आता है, खास करके मेरे जैसे हम सब आदमी चाहता है अपना पर्सनल ब्रांडिंग। सब नहीं बोल सकते क्योंकि फिर एक कंट्रोवर्सी हो जाएगा, पर मैक्सिमम आदमी का मोटिव रहता है कि हाँ भाई मेरा ब्रांडिंग हो, मेरा नाम जाने। मेरे ख्याल से जो आदमी स्टार्टअप में आता है उसको पैसा के साथ साथ एक पॉपुलैरिटी भी मस्ट इम्पोर्टेंट
चीज होता है कि हम मीडिया में रहे, पेपर में आए, टीवी में आए, जो भी है, तो जहाँ पे मतलब आपका आ रहा है वहाँ पे तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे एम्प्लॉय का आ सकता है। किसी के अंडर में 50 एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉय है, तो 200 एम्प्लॉय को आपस में हम लोग साथ लेकर चल सकते हैं लोग, पर कहीं एक कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ पे तो हम लोग 200 एम्प्लॉय को नहीं भेज सकते हैं लोग। तो पर्सनल ब्रांडिंग तो हर कोई करता है और शायद चाहता भी होगा, क्योंकि कोई कितना भी बोले, हम पहले भी बोल चुके हैं कि आज एज फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टअप है लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग, आपको आज तक वाला आपके ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है कि हमको इंटरव्यू लेना है लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग का, तो आप बिना कुछ सोचे समझे खुद जाइएगा, अदर देन कि आप किसी अपने एम्प्लॉय को भेजिएगा, कि क्योंकि वहां पे आपको अपना पर्सनल ब्रांडिंग दिखेगा और उससे भी बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर की, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास स्टार्टअप में अपने आप पे रहता है कि आपको लगेगा कि इस आइडिया को मेरे से बेटर कोई नहीं। यस, तो अभिषेक एक और क्वेश्चन है तुम्हारे से, एज यू आर स्टूडेंट, मतलब अभी ग्रेजुएट ही हुए हो, तो तुमने जो मैंने वो एग्जांपल दिया है कि बहुत लोगों का आइडिया आता है और आई डोंट नो हर सप्ताह 10 दिन महीना में कोई ना कोई मिलता होगा, बोलता होगा मेरे पास भी एक आइडिया है क्या करें, मेरे पास भी एक आइडिया है क्या करें, इस टाइप के लोग मिलते रहते होंगे और एक महीने बाद गायब भी हो जाते हैं। नहीं, उसका रीजन क्या है, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल हम अपने कॉलेज में देखें, बहुत सारे लोग मेरे को भी देख कर जो भी बोलिए, पैसा बोलिए, जो भी बोलिए, स्टार्टअप में आए 15 दिन 1 महीना जो बोल रहे हैं ठीक है और गए, आइडिया इस सबके पास है, यहाँ तक कि हमको लगता है कि एक रिक्शा वाला से भी पूछेगा ना तो वो भी आपको 5 आइडिया दे देगा। आप आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा चीज जो मेरे को लगता है कि आप उस आइडिया के साथ कब तक टिक रहे हैं, कब तक आप उसके साथ रह रहे हैं। अगर आप मतलब साथ रह गए तो उस सही है, सक्सेस होना ही होना है, और बीच में छोड़ दिए घबरा के तो फिर मुश्किल है। और जो हम मानते हैं कि जो इंसान बीच में मतलब छोड़ देता है, भाग जाता है, वो उसको अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो वो नहीं भागता है मेरे ख्याल से वही एंटरप्रेन्योर होता है। करेक्ट, बीच भी नहीं बोलेंगे, आई थिंक सी बीच पे ही भाग जाता। साइड में गोता लगाया, अरे बहुत ठंडा पानी, भागो यहाँ से, नहीं होगा मेरे से। आई थिंक वैसा ज्यादा प्रॉब्लम है आई गेस। ओके, लेट्स हियर फ्रॉम अभिराम। सो अभिराम, you joined later, so maybe you can hear from you the very initial thing also, कि what do you think, like launching a competition is better or launching a very innovative product is better according to you? Can I answer in a little bit? I'm just Okay. still thinking. Okay. हाँ, तो अभी उज्जवल, are you there, और अमन, are you there? अमन, are you there? I think proxy जैसा अभी। अच्छा, रवि जी आप Okay. बताइए। I'll go. कौन है? Yeah, okay. Yeah, yes, Abhiram, please. So it is always difficult to go in red ocean. That's my opinion. Red ocean in the sense going against an existing business, but it depends. If the idea is much better, or I think somebody mentioned convenience, right? The convenience, or how much value add you are providing compared to the other business is what that matters. But if it is something like grocery business or e-commerce, if we start up a business until and unless you have something very innovative which will provide a lot of value add, I don't think it would be it would be very hard for a new company to succeed. So I would prefer a blue ocean that is starting a new segment altogether, or a new way of solving a problem. Mm-hmm. Okay, sure.
मैं कुछ बोलूं? हाँ यस हाँ। बोलिए, बोलो और ओके, सो मैं अभिराम के पॉइंट को जस्ट आई वांट टू काउंटर हिज पॉइंट. ही सेड रेड ओशन ही करना चाहिए, मतलब कि सॉरी, ही सेड कि ग्रोसरी और ये सब नहीं आना चाहिए. व्हाट इज जियो डूइंग? जियो इज coming into grocery or have started already come. Grocery is nothing new. Big Basket and Grofers are already doing. Jio started telecom services, nothing new. So I don't agree कि आपका नया ही मॉडल रहेगा तो ही आप सरवाइव कर लोगे. तो मतलब दिस इज अ मिथ. लोगों को लगता है कि आइडिया इज गुड इफ इट इज न्यू. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई टेल यू कि वॉट एवर आइडिया, लेट्स से विशाल को लगता है कि लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग इज अ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. तो विशाल, आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस कि 1 करोड़ लोगों ने ये सोचा होगा, लेकिन आपने हिम्मत थी वो करने की. आइडिया आपका नया नहीं है. आइडिया तो आपसे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं जो ये सोचे होंगे, तो लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए आप आज दिग्गज हो, या इसलिए वॉट आगे बढ़ एवर गए. यू आर डूइंग. हाँ, आगे बढ़ गए. So it is nothing to do with idea. As I mentioned in the starting, it is only to do with that individual who has the passion, who has the guts to go from A point to B point. लोग तो जा ही नहीं पाते हैं, लोग A point पे ही नहीं, A point पे ही बैठे रहते हैं. वही जो आपने बोला ना, पानी ठंडा है, वही वाली चीज है. ठंडे पानी से मैं ही नहीं नहा पाता हूँ, इतना ठंडा लगता है. तो वही चीज है. करेक्ट. तो सौरभ, तुम्हारे ही केस में अगर, अच्छा विराम वांट टू से समथिंग. यस विराम प्लीज. Yeah, I agree. I'm not denying the fact that if an individual puts his mind to it, he can achieve anything. But for the argument, I mean, for the example that you are giving, right? Like especially something like Geo. I mean, in order to go against in a particular segment, if you have a lot of money, that's what Reliance is doing, right? He has a lot of money, and he's collecting funds from various people, various countries, and various organizations and various individuals. Since he has the power and money, I think that's a major differentiating factor in order for you to go into this very well-known segment and try to disrupt it. That's what I feel. I mean, yeah. And, when you're saying कि marketing plays a very major role here, if it's marketing and competitive. money. Marketing needs money obviously. Yeah. नहीं, तो ये थोड़ा सा I think this statement is probably a bit extreme. Maybe Saurav, you want to add something here? Is it just the money that is helping Jio to disrupt, or actually influence? I would say influence instead of money. Influence. I mean, for Jio, I agree it is money, but for many other startup, raw startups and young startups who don't have money, उनके लिए it is never money. Money is always a byproduct, and money will come if आपके आइडिया में दम है, फाउंडर में दम है, and a lot of other factors. नहीं, तो इसमें money एक is चीज not the most primarily thing. नहीं, इसमें एक चीज ये भी बोल सकते हैं ना, like Reliance for example, Jio for example. Jio, I mean, let's say when their father started that, so his father had a very humble story, right? I mean, 0 to 1 वाला story था, right? तो कभी कभी तो ऐसा भी तो है कि यू नो यू डू, जैसा अभिषेक ने भी बोला कि एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप उससे वेल्थ एक्युमुलेट कीजिए, और उससे यू नो ट्राई हैविंग अनदर प्रोडक्ट एंड देन यूज दिस वेल्थ टू डिसरप्ट काइंड ऑफ. आई मीन बेसिकली जियो में जो पैसा हम लोग बोल रहे हैं, इट्स बेसिकली दैट फ्री सिम कार्ड गिवन, राइट, इनिशियली. बट इन जनरल आई थिंक सारे प्रोडक्ट्स को शुरू में फ्री सैंपल तो देना ही पड़ता है. जियो में हैव गिवन इट टू मास, लेट्स से, but most people give it to the class at least. I mean, you know, like in our case also, we also couldn't give it to the mass. उतने पैसे थे नहीं हमारे पास, तो हमने थोड़ा कंपटीशन का फंडा लगाया कि चलो फ्री सैंपल भी बांटना है तो कंपटीशन के विनर को बांटो, सिर्फ सबको नहीं बांटना है. So something like that. Atul sir, you have any comment in this? ये जो फ्री वाला जो मॉडल है, मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ. फ्रीमियम हमेशा जो बोलता हूँ कि आप जितना भी फ्री में बांट सकते हैं बांट दीजिए, आपके काबिलियत शक्ति के अनुसार, लेकिन जितना आप अफोर्ड कर सके. तो आप रिलायंस हैं तो आप पूरे इंडिया को जियो फ्री में बांट सकते हैं. एंड उसके बाद क्या होगा, कुछ मार्केट में जो बाकी जो प्लेयर्स थे उनको आपने भगा दिया
केवल एक तो बच गए, एयरटेल आपसे कम्पीट कर पा सकता था, वोडाफोन बच गया या टाटा थोड़ा बहुत बचा, बट बाकी जो इंडिया के टेलीकॉम में इतने सारे प्लेयर्स आ गए थे, 10-15 पता नहीं आ गए थे, प्लेयर्स आ गए थे, टू मच ऑफ हो गया था मार्केट में, तो पता नहीं चलता था किसका यूज करें। और ये भी लिमिट था कि पोर्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था कि अगर आप रिलायंस का यूज कर रहे हैं तो रिलायंस वाला फ्री है, बट दूसरे में जियो का जियो टू जियो फ्री है, बट जियो टू एयरटेल में पैसा लग गया, एयरटेल का एयरटेल टू एयरटेल फ्री है, बाकी पैसा लग गया, तो वो थोड़ा ओलिगोपोली वाला सिचुएशन था। तो वहां पे अंबानी जी ने जियो ने जो फ्री में मॉडल यूज करके बांट करके मार्केट को शेकअप कर दिया, शेक डाउन कर दिया, और उसके चलते बाकी जो उनके सारे बिजनेस ज्यादातर जो कंपटीशन थे हिल गए, बचे कुछ तो केवल अंबानी जी के सामने केवल बच पाए मित्तल जी के एयरटेल टिक पाया और कुछ और जो वोडाफोन टिक पाया। तो ये स्टार्टअप वर्ल्ड में ये ट्रेंड होता है, मेरा जैसा अंडरस्टैंडिंग, आप किसी भी इंडस्ट्री में देखो तो 2-3 ही 4 बड़े बड़े प्लेयर्स बच जाते हैं, और बाकी सब छोटे छोटे प्लेयर होते हैं, वो निश में प्ले करते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में फोकस कर रहा हूँ, या उस पर्टिकुलर सेगमेंट को मैं केवल यंग लोगों को फोकस कर रहा हूँ, या केवल मैं लड़की लोगों को फोकस कर रहा हूँ, या स्कूल वालों को फोकस कर रहा हूँ। थोड़ा सा माइक्रो एरिया या निश को फोकस करते हैं तो चल पाते हैं, और जो ब्रॉड मार्केट होता है, बड़ा मार्केट पूरे भारत को दे, तो वहां पे आपके पास अंबानी और मित्तल से टक्कर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोनोपोली वाली ट्रेंड होती है, इंडिया में भी है, और यूएस का एग्जांपल देता हूँ तो यहाँ पे मिलनी है वोडाफोन और AT&T और एक और स्प्रिंट, बाकी सारे जो सेलफोन कंपनी थी सब कोई टिका ही नहीं, बचा ही नहीं। तो पूरे ज्यादातर कंट्रीज में यही होता है कि 2-3 बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट ओलिगोपोलिस्ट बचते हैं, और बीच वाले सब खत्म हो जाते हैं, या वो बहुत नैरो निश एरिया में काम करते हैं। एक लाइका मोबाइल बहुत पॉपुलर है देसी लोगों में, कोई भी इंडिया से आता है तो एयरपोर्ट से उसको एक लाइका मोबाइल देते हैं, जो कि अनलिमिटेड कॉल आप कर सकते हो 60 कंट्रीज या बहुत सारे कंट्रीज में। तो निश आप निश मार्केट में आप अटैक कर सकते हो, बच सकते हो, बट आप बड़े वाले मार्केट पे खेलना चाहोगे तो आपके जो बड़े जो 3-4 जो महान लोग हैं उनसे टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। श्योर। तो एक चीज मैं भी इनफैक्ट डालता रहता हूँ अपने आर्टिकल एंड ऑल में कि मास मार्केट कैप्चर करने का 4 स्टेज होता है यूजुअली। पहले फ्री में दें कुछ, फिर डिस्काउंट करें कुछ, फिर ब्रेक इवन पे जाएं, फिर प्रॉफिट कमाएं। तो 4 स्टेजेस। सो साइकिल 3 से 4 साल या थोड़ा 2 साल भी हो सकता है, होता होगा इस पूरे स्टेप्स का। लाइक जियो इज अ वेरी गुड एग्जांपल, एंड अदर एग्जांपल ऑफ दिस यू कैन से इज कि ये 4 जो स्टेज है, इंस्टेड ऑफ 4 स्टेज ये 4 प्रोडक्ट हो सकता है एक ही कंपनी का। ये एक प्रोडक्ट फ्री है, एक आपका डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है, एक ब्रेक इवन प्रोडक्ट है, एक प्रॉफिट प्रोडक्ट है। तो जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द अदर लॉसेस दैट यू आर इनकरिंग इन अदर थिंग्स। सो मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जैसे कि अभी अतुल सर ने बोला फ्री, कि इनिशियली अगर आप फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग सम कंटेंट क्रिएटेड, यू आर गेटिंग सम फीडबैक एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आई गेस आई मीन ट्रेडिशनल बिजनेसेस didn't really work on this principle that you just give it for free as such. And Abhishek, I think इसका थोड़ा सा अभिषेक are you there? Yes. हाँ, तुम एक बार आई थिंक 1-2 बार कमेंट कर रहे थे ना कि फ्री का चीज नहीं देना चाहिए, फ्री का चीज नहीं देना चाहिए। ये हम इस पे मैं क्या बोलना चाहोगे? चाहते हैं प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल सारे लोग तो फ्री में नहीं ना दे सकते हैं। देश में जितना भी स्टार्टअप या बिजनेसमैन होंगे उसका सही 1% ही दे सकते हैं। जैसे मेरे को वो बोला जाए रोबोटिक्स या LED का कि 2 लाख का फ्री में दे दो, तो हम तो नहीं दे सकते हैं। सौरभ सर को वो बोला जाए कि आप अपना 500 चश्मा फ्री में दे दीजिए क्योंकि आपका मास कंजप्शन होगा। तो लोग का भी एक मेंटालिटी होता है कि एज फॉर एग्जांपल वो जियो था उसको भूल जाइए क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुकेश अंबानी नहीं है, उसके पास अपार पैसा है। लोग आपका फ्री वाला इस्तेमाल ले लेंगे हार्डली 24 to 48 और याद रखेंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्लियर देखो से फ्री का चश्मा ले लिए या जनता से LED ले लिए हैं और जब एक खरीदना होगा तो लेंस कार्ट और सिस्का में जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1-2%
जिनके पास पूरा पैसा वो कर सकते हैं, नॉर्मल ये स्टार्टअप को नहीं करना चाहिए फ्री वाला काम। ओके, ठीक है। सौरभ, यू हैव ए कमेंट ऑन दिस? हाँ, मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहला मैं ये बोलना चाहूंगा, एक स्मार्ट स्टार्टअप में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री और प्रीमियम, इट इज कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आज उबर और ओला भी फर्स्ट 5 राइड्स फ्री देते हैं नया कस्टमर लेने के लिए, और ऐसा अच्छा फाड़ एक्सपीरियंस देते हैं कि बंदा उसके बाद टैक्सी में जाएगा ही नहीं, और बाद में वो पैसा रिकवर करते हैं। तो आई डोंट अग्री ये फ्री मॉडल होता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। आप उसे फ्री बोल सकते हैं, मैं उसे फ्री नहीं बोलता हूँ। अगर आपका स्मार्ट बिजनेस है, अगर ओला फ्री में दे रहा है और एकदम बेकार, टैक्सी से भी बेकार सर्विस था, देन ओला इज ट्रू, देन ही शुडंट हैव डन दिस। बट एक स्मार्ट फाउंडर या स्मार्ट स्टार्टअप वो फ्री नहीं बोलता है, वो कस्टमर एक्वायर करने के लिए कॉस्ट पे करना पड़ता है, वो करता है बिकॉज ही नोस कि 2 साल बाद कस्टमर मेरे पास वापस आएगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट इन द मार्केट एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। सेकेंड पॉइंट जो आपने बोला विशाल, कि आपने एक चीज बोला था, सॉरी भूल गया, इनिशियली फ्री देना पड़ेगा एटलीस्ट, आई गेस। नहीं, फ्री वाला कवर कर लिया। आपने एक पॉइंट बोला था जिसमें मैं अग्री नहीं करता हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, I'll come back. 4 स्टेज था सर। 4 स्टेज वाला? नहीं, 4 स्टेज वाला तो हो गया, फ्री डिस्काउंट, ब्रेक इवन, प्रॉफिट। ओके, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो इसी पे एक काउंटर क्वेश्चन ये है। अच्छा, और रवि वांट टू ऐड, प्लीज रवि। सो मैं एक पिछले वाला पॉइंट बोलता हूँ और फिर ये वाला पॉइंट भी कवर करूंगा। 2 पॉइंट। एक जो पॉइंट पहले बात चल रहा था जिसका क्वेश्चन था, वो एक बिजनेस और आइडिया और एग्जीक्यूशन ये न्यू होता है या फिर कॉपी होता है, ठीक है। तो एक जब भी वी एज अ एंटरप्रेन्योर और जब हम लोग एक आइडिया के साथ में आते हैं, देयर 3 थिंग्स व्हिच इज वेरी मेटिकुलस इन द मार्केट। एक, जो बिजनेस ऑलरेडी है, सो मार्केट इज देयर, 1। सेकंड, आपका आइडिया, एंड थर्ड इज एग्जीक्यूशन। और आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक 90% ऑफ द टाइम, एक ब्लू ओशन कॉन्सेप्ट, कीप इट अपार्ट, आई एम टॉकिंग इन रेड ओशन ओनली। ब्लू ओशन का आप अभी, आई एम जस्ट कीपिंग इट अपार्ट, इन रेड ओशन ओनली मार्केट। यहाँ पे बिजनेस और आइडिया ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, कॉपी होगा, बट जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ना, दैट ऑलवेज यूज टू बी आइडेंटिकल टू दैट पर्टिकुलर either a man or that particular organization. और यही वजह है कि there are lot of company who are into, as a company they are into different segment altogether, but their product is into different segment. Let's say if we talk about Oyo or Ola or Uber, company wise they are into a technology company, but functionally they are into cab or they are into hotel business, but as a company they are into technology company. Same as case of this is a company which is from Bangalore. Did you heard of ID? ID is a company who design the products into the milk byproducts, not milk but milk. They supply milk byproducts and the South Indian foods, idli, sambar, batter. हाँ, yes, yeah. So he is from, I am Bangalore only, pass out. So their USP is, see, they are doing the simple things. They are providing the milk products or the dosa batter and all those, but their USP is the packaging. Packaging is the USP which they differentiate in terms of execution of their products. And people do buy ID just because of the packaging that they give in terms of using the material or using the product. So this is my point. Could be your business, could be your similar, maybe copy, idea could be copied, but the executions will always be identical or unique to the particular person. So in Saurabh case, if I analyze, keep this analogy with the Saurabh case, see, Chashma ka already market hai, business is there. Now idea is also similar, retail hai, online hai, both is there. But what Saurabh is doing, executions of that business idea is very exclusive or very particular, unique to Saurabh only. Saurabh, how he is doing in the market, because of which the investors or the customers who are getting onto the Clear Dekho. So this is one point. Second point, which right now we were talking about in case of Jio or a similar kind of, see, there are few in freemium models. So there are few products which
as a product, they have very customer acquisition cost, but the main revenue to the company comes while using the product. Let's say a shop or a soap which is sold to a customers. So soap itself will give the revenue, but in terms of SIM cards, the main revenue comes from utilization of like calling, the time which SIM cards get allocated after buying the time. So which bring revenue to the company, whereas the cost of SIM card is only the customer acquisition cost, and which is always be higher than what it is being showed in the market. Let's say when a company, particularly for a SIM cards, pay around 150 rupees each SIM card cost, including everything, marketing, the productions, integrating of the technology into the SIM cards inside, and RFID and all those things. But it is being showed in the market free of cost, and the company do not earn much revenue on the SIM cards, rather than they earn the revenue from the time which customers buy for recharge and all. Likewise, there are a lot of in case of Ola, Uber, that is the thing. I am giving it free just to get the customers accommodate to the products. Once they will get the acclimatizations with the products, they will start using. So my revenue maybe start by the 6th or 7th or 8th, this one, utilizations, or maybe the utilizations of my product. So till 8th term, till 8th time will be the customer acquisitions cost for a company, which is well designed while designing the like a framework is being designed, or that analysis of that cost is being designed while the designing of the product itself. Hope I am making a little bit clear on the points, these 2 points. Yeah, sure. ठीक है, तो एक चीज और, I think regarding Jio only I'll make a comment that only SIM card was free. ठीक है, फोन तो खरीदना ही पड़ा सबको 4G जिनके पास नहीं था, and Reliance was selling the kind of the cheapest 4G phone. तो हम लोग कितना भी बोल रहे फ्री है फ्री है फ्री है वो रेजर ब्लेड स्ट्रेटेजी टाइप था कि ब्लेड फ्री का दे दिया, रेजर तो खरीदना ही पड़ेगा, आप मेरे से खरीदो, किसी और से खरीदो, व्हाटएवर खरीदो, बट कहीं ना कहीं हल्ला हो गया कि नहीं ब्लेड फ्री का मिल रहा है, ब्लेड फ्री का मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो हाँ, एक अभिषेक ने कमेंट किया था अभी कि लाइक कुछ ही लोग कुछ पार्ट फ्री दे पाएंगे, लाइक सौरव 500 चश्मा फ्री दे पाएंगे या जो भी है, तो लाइक ऑन सौरव सेट की इट्स नॉट फ्री, एक्चुअली इट्स अ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट can be there, but what I also see is कि ये cost is also helping us in the product development. तो क्या हो रहा है कि जो शुरू में हम free samples दे रहे हैं, we are getting feedback from people, and then using that feedback we can make the product better, and I can relate this very much with Jio, because Jio जब launch हुआ था शुरू में तो free का था, service ऊपर नीचे fluctuate होता रहता था, but because free का था तो कोई कुछ बोलता नहीं था, तो क्या बोलेंगे free क्या है, मतलब कुछ बोलने के लिए नहीं है फ्री का चीज में। तो बट उस फीडबैक को उन्होंने उस प्रोडक्ट को बेटर बनाया और अच्छा किया, फिर वो 6 महीने में थोड़ा और अच्छा हो गया प्रोडक्ट, तो उसके बाद चार्ज करना शुरू किया, या 3 महीने में पहले सोचा होगा, फिर 3 महीने से 3 महीने एक्सटेंड कर दिया, तो 6 महीने में पूरा मार्केट भी कैप्चर हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अदरवाइज वो प्रोडक्ट डेवलप करने में भी इट वुड हैव टेकन मे बी अ व्हाइल, आई मीन इफ दे वांटेड टू start selling from the day one, let's say. So Atul sir, what comment you have here? Any comment you have? Yeah. So Vishal, I missed the last point. What is? Yeah, so I'm saying कि free sample देके आपको product का review मिल जाता है, so you can develop your product with those reviews, and customers won't say much because it's a free product. तो मेरा as an entrepreneur और as an investor ये advice होता है startups को कि आप अपने कस्टमर्स को अपनी टीम में शामिल कर लो। तो कस्टमर को टीम में शामिल, जो फ्री वाला पार्ट है ना, एक तरह से वो आपके लिए प्रोडक्ट टेस्टेड हो गया, आपको फ्री का फोन सैंपल दे रहे हो या फ्री का कुछ गिफ्ट दे रहे हो, और कस्टमर आपके अनप्रूवन प्रोडक्ट को ट्राई कर रहा है, तो रिस्क ले रहा है, और उसका जो फीडबैक है वो आपके प्रोडक्ट को बेटर बनाने में हेल्प करेगा। तो ज़्यादातर कंपनी क्या करते हैं कि टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में हो चाहे हार्डवेयर हो या इवन कार में भी, आपने कोई नई कार बनाई तो कार को टेस्टिंग के लिए जो बड़ी कंपनी है GM, फोर्ड और होंडा और टोयोटा, उनको टेस्टिंग में बहुत साल लगते हैं, बहुत करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है कि वो कुछ ऐसे लोग जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, रिस्क टेकर्स हैं,
उनको बोल सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट है अभी लॉन्च के लिए रेडी नहीं है, बट हमने अपने हिसाब से टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली है, बट हमें कुछ अर्ली अडॉप्टर्स चाहिए जो हमारी कार को ट्राई आउट करना चाहते हो, और फ्री में आपको कार दे रहे हैं, लीजिएगा क्या, या डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आपने ट्रायल का दे दिया फ्री में, तो आपके कस्टमर जो थे वो आपके टेस्टिंग टीम का पार्ट बन गए। आपके प्रोडक्ट को उन्होंने रिफाइन करके फीडबैक देके अपने टाइम से अपने कॉस्ट से उन्होंने टेस्ट करके आपको फीडबैक दिया, और वो फीडबैक आपके मेन जो प्रोडक्ट है लॉन्च करने के पहले उनका इनपुट काम आएगा, तो प्रोडक्ट आपका बेटर प्रोडक्ट होगा, सेफर होगा। तो मुझे लगता है ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि कस्टमर्स को दूसरे वे में बोलता हूँ कि अपने जो किचन है ना, आपको बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो किचन में ग्लास, ओपन ग्लास रखिए, और कस्टमर्स को भी अंदर झांकने का परमिशन हो, कस्टमर को अंदर जाने का भी परमिशन, ऑब्वियसली यूजिंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ताकि कस्टमर को ज्यादा ट्रस्ट हो, भरोसा हो कि क्या बन रहा है, हमको दिख रहा है, या वहां से ग्लास के शीशे से दिख रहा है कि कैसे बन रहा है, खाना पक रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है कि बहुत सारे कहानियां भी पता है कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट चेन्स में कि किचन में एम्प्लॉय जो थे, कुक जो थे, वो क्या गंदा काम कर रहे हैं, किसी बात से वो कस्टमर से नाराज होकर उनको कुछ गंदगी मिला के उनको खिला रहे हैं, बट कस्टमर को पता भी नहीं चला। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा रेडिकल ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि जितना ट्रांसपेरेंट रहो, कस्टमर्स को भी इंक्लूड करो अपने ओवरऑल लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर देखो का चश्मा, आप सुबह सौरभ जी हम सबको GDA 10 सबको एक सैंपल भेज दे, हम सब इनके लिए अच्छा रिव्यू देंगे, फीडबैक देंगे, और बता भी देंगे, प्राइवेटली बता देंगे कि सौरभ वो तो ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, वो वाला टच नहीं आ पा रहा। तो ये जो हम लोग फीडबैक देंगे क्लोज ग्रुप में, वो जो क्या है कि अच्छा वाला टेस्टिंग है, और सीधा मार्केट में लॉन्च करेंगे तो मार्केट में तो फिर जो नेगेटिव रिव्यू आपको वेबसाइट्स पे या अमेजन पे हर जगह पे आपको गंदी फीडबैक, बट ये जो फीडबैक हम लोग केवल सौरभ को बताएंगे और पब्लिक को नहीं बताएंगे नेगेटिव फीडबैक। तो आई थिंक ये अच्छा स्ट्रेटजी है। सर आपके लिए स्पेशल ऑफर है, यू बाय एनी फ्रेम फ्रॉम अस एंड यू गेट एंटी ग्लेयर लेंस फ्री और ब्लू कट लेंस फ्री, ओनली फॉर यू। इंडिया आता हूँ इस बार तो देखता हूँ, आपके दुकान में आता हूँ, फिर डिलीवरी भी करा सौरभ, तब तो होम डिलीवरी कराओगे तो अच्छा लगेगा ना। हाँ सर, डिलीवरी विदेश भी हो जाएगा, जस्ट लाइक Amazon, I will also charge 2000 rupees extra। चश्मा 500 का है, लेकिन डिलीवरी चार्ज मंगवा लूंगा ना किसी से, आपको आपके सेंटर से मैं अपने इंडिया में किसी अपने लोकल किसी से पिक करवा लूंगा और उनसे मंगवा लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। डिलीवरी बॉय भी है तो सर का फ्री वाला। आप मुझे डिलीवर करा दीजिए, मान लीजिए कि आपने पटना में, रांची में पटना में डिलीवर करा दिया मेरे घर पे, फिर पटना से दिल्ली, दिल्ली से कैलिफोर्निया, तो आ जाएगी। बहुत बार लोग लैपटॉप मंगा लेते हैं, आईफोन मंगाते हैं, तो चश्मा तो थोड़ा हल्का होता है। परफेक्ट सर, यू जस्ट हैव टू पे फॉर द फ्रेम। ओके, तो सौरभ तुमसे ही पूछते हैं अभी ये कि ये जो शुरू वाला आई थिंक जो कस्टमर एक्विजिशन है, do you also agree that it helps in the product development, initially giving free samples? नहीं, बिल्कुल। product development is just one part of the initial journey। प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो वैसे भी चलता रहता है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ जब आप फ्री देते हैं तभी होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। कस्टमर फीडबैक चाहे आप फ्री देंगे चाहे पेड देंगे, कस्टमर फीडबैक तो जिंदगी भर आता रहेगा। एंड एज अ स्टार्टअप फाउंडर यू हैव टू ऑलवेज बी एजाइल एंड अप टू डेट ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोडक्ट, एवरीथिंग। तो मैं ये बहुत स्ट्रांगली इस पॉइंट पे नहीं बोलूंगा कि फ्री देने से कस्टमर फीडबैक मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रोडक्ट दीजिए, आपको वैसे ही 6 महीने के आपको 1 महीने में फीडबैक पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट का, वेदर यू आर गिविंग इट फॉर फ्री और सेलिंग इट एट अ गुड प्राइस। नहीं तो ये तो आई थिंक जैसे अभी तो तुमने बहुत दिन कर लिया है तो ये बोल रहे हो ना, लेट्स से यू आर ऑन योर डे 1, सिटिंग ऑन योर डे 1 और डे मंथ 1, तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया होगा कुछ और कस्टमर आ रहे नहीं होंगे, ये है वो है, तो शुरू में आई मीन what, like according to you, what can be not maybe related to Clear Dekho only, yeah, what can be your first 10 customer acquisition strategy for that matter? पहला 10 या 20 कस्टमर जो आता है उनके लिए फ्री सैंपल्स करना बुद्धिमानी है या नहीं करना चाहिए, या मतलब थोड़ा कुछ क्या करना चाहिए?
हमारे हिसाब से। मैंने तो फ्री सैम्पलिंग नहीं की थी, मैंने तो पैसे देकर अपने फ्रेंड्स फैमिली का बनाया था। हाँ, थोड़ा कम पैसा ले लिया था, मे बी जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया होगा, लेकिन फ्री मैंने नहीं दिया था। हाँ, मैं क्योंकि पेटीएम से था तो उस समय पेटीएम कैशबैक खूब चलता था, तो आई ऑल्सो यूज दैट स्ट्रेटजी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अभी भी हम लोग काफी ऑफर्स देते रहते हैं, जैसे अभी 50% ऑफ चल रहा है, या कुछ अभी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं 15 अगस्त में सबसे कम सबसे सस्ते दिन, इस टाइप से फ्लैश कुछ सेल जैसे। जैसा। हाँ, ये सब तो करते रहते हैं, तो ये सब तो करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे कोई फ्री नहीं कुछ बांटा है। हमने मेले में और ठिये पे वैसे ही सस्ता देते थे, तो वो फ्री के बराबर है। 100 रुपए में चश्मे दे रहे हैं तो उसकी खरीद 50 रुपए 100 रुपए में दे रहे हैं, तो इट इज नेक्स्ट टू फ्री ओनली। बिकॉज चश्मा अगर कोई कस्टमर किसी दुकान से जाके लेगा तो कम से कम 500 600 1000 रुपए का चश्मा मिलेगा। मेरे से उसको 100 रुपए का मिल रहा है, तो उसमें भी मैं 50 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं फ्री में क्यों दूं? कस्टमर के लिए इट इज फ्री ओनली, as good as free, correct. I have to be the least priced quality product. मुझे -10 थोड़ी करना है, -1 करना है बस। करेक्ट। L1 होना है ना मुझे, बस सिंपल। हाँ अभिषेक, तो एक तुम्हारा कमेंट था, एक यू मेड अ कमेंट कि ₹1 से ₹20 करना इजी है, ये तुमने कमेंट किया था एक बार। हाँ बताओ। पहले हम बता रहे हैं फ्री वाला को लेकर कि सारे लोग बोल रहे हैं कि कस्टमर को एक्विजिशन करने के लिए फ्री देना चाहिए। फर्स्ट कम से कम जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्टअप स्टार्ट करता है कि कितने स्टार्टअप के पास पैसा रहता है कि वो फ्री में दे पाएगा। मैक्सिमम स्टार्टअप तो या तो उसका रखा हुआ पूंजी रहता है, या नहीं तो कर्ज लेकर, या जो भी बोलिए अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट बोलिए। जो आदमी 30,000 40,000 रुपये से स्टार्ट कर रहा है तो वो फ्री में कोई चीज़ कैसे दे सकता है? सौरभ सर की बात से हम एग्री हैं, जो मतलब हम भी अप्लाई किए थे कि कम से कम जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है या मेरा परचेजिंग कॉस्ट आ रहा है, हम अपना वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे आने वाला वो 15 दिन 1 महीना जो भी बोलिए, उसी कॉस्ट में दे देंगे। लेकिन टोटली फ्री देना ये शायद ये स्टार्टअप के लिए चालाकी नहीं होता, उसको आगे फिर जाकर कुआं ही दिखाई देगा, उसमें गिरना ही पड़ेगा। अगर आपका मतलब क्या बोलते हैं बैक, मतलब आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर आपका बाप का पैसा है और उसी को आगे वो बढ़ा रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको हम स्टार्टअप को मानते ही नहीं है। लेकिन जब आप पैसा इकट्ठा करके कर लेकर या आपका कमाया हुआ पैसा से स्टार्ट करें तो फ्री देना अच्छा चीज नहीं है। प्रॉफिट मत कमाइए 15 दिन 1 महीना, उससे ही है, लेकिन फ्री मत दीजिए। Okay, Ravi, please. Okay, so just adding one more point on this free वाला thing, ठीक है, कि ये कहीं फ्री देने का या नहीं देने का कहीं ना कहीं हद तक प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी वेल एक्सेप्टेड है मार्केट में, या फिर मतलब पीपल आर नोन टू द प्रोडक्ट्स, आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं अपना कॉस्टिंग प्रोडक्ट पे और फिर एमआरपी प्रोडक्ट पे और रेवेन्यू। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, जैसे SaaS प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर गेमिंग प्रोडक्ट्स है, ये सारे ऑलमोस्ट फॉर 7 days और 15 day ट्रायल बेसिस पे फ्री रहते हैं, देन इट गोज फॉर द रेवेन्यू मॉडल। तो वो भी एक साइड है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जहाँ पे SaaS प्रोडक्ट्स रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, वहाँ पे आप देखिएगा तो मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 80-90% जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इनिशियल डेज के लिए लेट्स से 7 days और 15 days और फॉर अ मंथ फ्री ट्रायल रहते हैं। So for that period, and then you require a key to operate, use it, and for that the company will charge you. तो वो भी एक मॉडल यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जहाँ पे कंपनी डिसाइड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द कंपनी, this is very subjective in terms of company product and how they want to go into the like go to the market strategy. They have backup to take care of that acquisition cost, or from the day one they can start it with the costing of selling a product. So I'll give one example, few examples actually. LinkedIn का example लेते हैं. LinkedIn Premium is free for first month. ठीक है, then they charge like 1500-1600 a month. But वो पहला month, you know, it's very addictive. It can make you very addictive. और फिर लगे कि नहीं प्रीमियम ही रखना चाहिए, ठीक है.
और एक बहुत थोड़ा ब्रूटल एग्जांपल है ड्रग्स का ही ड्रग्स कोई भी पहले दिन पैसा लेके देना चाहेगा ना तो कोई नहीं लेगा ठीक है, बोले यार सेहत भी खराब होगा और पैसा भी दो तो शायद कोई ना ले। तो इसीलिए वो ड्रग्स वाले में कहीं ना कहीं पहले दिन फ्री दिया जाता है या पहला टाइम 2-4 बार फ्री दो, उसके बाद पैसा लेना शुरू किया जाता है। एंड समहाउ लॉट ऑफ ये प्रीमियम स्ट्रेटजी या जो भी है, मतलब शुरू में सब्सिडाइज ये स्ट्रेटजी, maybe it's bit derived from that model maybe. Let's hear from other people who haven't spoken. Abhiram, what do you think? What do you think about this drugs model of business? Are you there? Maybe Aman, you are there. Aman, बताओ क्या लगता है, ड्रग्स कोई पहला दिन से पैसा मांगेगा तो तुम लोगे क्या? फ्री में भी देगा तो यही लूंगा सर, मैं तो यही लूंगा सर, मेरा वो बट जो लेते हैं लेट्स से सर लेते होंगे सर, उनको तो लाइक जो लेते हैं सर वो बेसिकली आई थिंक दो कारण से लेते होंगे। फर्स्ट तो एक एडिक्टिव का या फिर जो भी चीजें आपने बोला वो चीज हो सकती है। दूसरा आई थिंक उसको सर वो जो नशा उसमें आई थिंक प्रीमियम मॉडल माना जाता है एज कम्पेरेटिबल टू जितने अदर नशे वाली चीजें होती हैं। तो वो भी होता है कि अमीर लोग हैं वो मोस्टली देखिएगा कि ये सारी चीजें लेते हैं तो वो भी शॉक हो जाता है कि वो एप्पल है और हमको वो ये चीज यूज करना है। तो मैं ये मेरा कहना है सर। श्योर। अच्छा तो अमन एक चीज ये बताओ, तुम लोगों का जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसमें हाउ आर यू गेटिंग योर एक्टिव यूजर्स, और एक्टिव यूजर्स नहीं आएंगे तो क्या करोगे? दम तोड़ दोगे, पानी ठंडा भाग जाओगे, या समुद्र पार करने की कोशिश करोगे? मतलब अभी क्या चल रहा है थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस अभी ये है सर कि अभी थोड़ा टाइम वेट करते हैं। अभी जितना लगा हमें वहाँ पर लगता है कि कुछ प्रोडक्ट पे हमारा आइडिया उतना अच्छा नहीं है, तो अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं उसके आइडिया को, अभी आइडिया पे वर्क करेंगे और इसको अच्छा आइडिया बनाए और इसको फिर से लॉन्च करें। तो इसलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं इस चीज का। और दूसरी चीज ये कि भाई कैट का एग्जाम भी है, तो वो भी चीज है लाइक शॉप से हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक ही चीज को ही कर सकते हो। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना तो केवल एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा कोई चीज नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने सुंदर पिचाई या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने भी ये कहा है, तो हमें भी ये लगता है कि अभी जो है फर्स्ट वर्क जो होगा वो केवल इस प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने पे रहेगा और इस आइडिया को और अच्छे से डेवलप करने पे होगा। इसलिए अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं सर। तो मेन प्रॉब्लम बेसिकली यूजर्स एक्वायर करने में आ रहा है, राइट सर? मैं बोल हाँ बताओ। अच्छा अमन बोलना चाहेगा? अच्छा तुम बोल दो फिर मैं बोल। हाँ तो उज्जवल तुमसे तो पूछा था, तुम तो गायब थे, फिर खाना खा रहे थे। नो सर, एक्चुअल में मैं उस टाइम कुछ ना कुछ कर ही रहा था, दैट्स व्हाई अभी थोड़ा फ्री हूं। सर आई थिंक यूजर्स एक्वायरिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि सेल्स आई थिंक दोनों की अच्छी है उतनी, मतलब कर सकते हैं मतलब अच्छे से, मेरा भी है और उज्जवल का भी कर सकता है। ठीक है, बट आई थिंक प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है कि लोग ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे उस चीज को लेके। और फाइनेंशियल मॉडल भी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है कि कहाँ से वो जनरेट हो सकता है। एक साल भी चला दे पूरा, हम लोग वर्क कर दे पूरा, उसमें मेहनत कर दे, बट उस पर से कुछ नया नहीं निकलेगा लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूँ तो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, तब जाके इस पे और बेटर हो सकता है। तो फर्स्ट आई थिंक वो है कि क्या करना अभी, प्रोडक्ट बेटर करना है। यस उज्जवल यू हैव सम कमेंट प्लीज। सर बेसिकली मैं दोनों पे काम कर रहा हूँ इस टाइम, कैट पे भी कर रहा हूँ, अमन लोगों को नहीं बताता हूँ ये सब कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो बेसिकली अभी तो बता दिया रिकॉर्डेड सेशन पे। अरे कोई नहीं, मतलब इट्स ओके। तो बेसिकली सर मैं अभी क्या देख रहा हूँ, लिंक्डइन पे किसी से बात करता रहता हूँ, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही थी। एक तो मार्केट जिसे स्कैनिंग मार्केट बोलते हैं, मैं अपने वर्ड में बोल रहा हूँ, कुछ और भी बोलते होंगे उसे। एक तो ये सब बहुत ज्यादा वेबिनार और जीडी वगैरह हो गए हैं, हम लोग मार्केट में बहुत पीछे हो गए। अभी मुझे समझ में आता है क्या मार्केट का सीन होता है, पहले तो पता ही नहीं था ये क्या होता है मार्केट। और दूसरा चीज क्या है सर, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारी में, टीम बिल्डिंग में। जो हम लोग बात भी करते रहते हैं, जो फर्स्ट 10 पीपल्स होंगे टीम में, उस पर सारा डिपेंड होता है। तो हमारे में किसी को भी को फाउंडर जैसे हम दे रहे थे, जैसे टोकन में दे रहे हैं किसी को फाउंडर बन जाओ हमारे साथ। तो अब हम वो चेंज कर रहे हैं। मतलब अब मेरा प्लान है कि मैं रहूंगा फाउंडर, या जो भी को फाउंडर, अमन रहेगा फाउंडर। और अब जो भी टीम में आएंगे तो उनको हम लोग एक पोजीशन दे देंगे, लाइक तुम ऑपरेटिंग ऑफिसर बन जाओ, या तुम कोई बढ़िया टाइप की सीएमओ टाइप में, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन जाओ, इस टाइप की पोस्ट देंगे। किसी को प्रॉब्लम आती है फाउंडर और को फाउंडर में,
और तीसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारे में कोई टेक्निकल बंदा नहीं था, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती थी। कहीं ना कहीं सेल्स में मेरी अच्छी है तो अमन की मार्केटिंग में है, तो हम दोनों दोनों टाइप के बंदे, तो प्रॉब्लम आ रही है वहां पे। और तीसरी चीज है जो आइडियाज है। आइडियाज मतलब कि अभी मुझे समझ में आता है, मुझे तो बड़ा सलूट करने का मन करता है सौरभ सर को, वो इतना कैसे सरवाइव कर लिया और इतनी जल्दी चीजें बदलती हैं ना। मतलब हम लोग एक महीने जो प्लान किए होते अभी सब कुछ लॉन्च हो चुका है, और हमसे 10 प्लस में 10 into में हुआ है हर चीज, और बढ़िया तरीके से हो रही है। और हम लोग बहुत चीजें मतलब कि हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए था, हम लोग बस प्रोडक्ट पे ही ध्यान दे रहे थे कि वेबसाइट बना लो, ये बना लो, पर हमें लाइक जीडी जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर देना चाहिए था। कितना एडवर्टीजमेंट वगैरह इसमें हम लोग ने गलती की है, तो एटलीस्ट कुछ स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास थोड़ा सा, लाइक आप इंग्लिश वाला ही कर लिए तो आप में कुछ ना कुछ रिटेन्ड हो गए हैं, मतलब कि एटलीस्ट इतने बच्चे तो आएंगे ही हमारे जीडी में या हमारे 8 PM में इंग्लिश स्पीकिंग में। तो एक बार तुम अपना जो कस्टमर ऑलरेडी तुम्हारे में एग्जिस्ट करता है, तब तुम आप फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हो। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी बेसिकली, मैं उसी पे अब काम कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पे। करेक्ट, अमन का तो एग्जाम, परफेक्शनिस्ट वाला प्रॉब्लम हो गया आई गेस, कि पहले प्रोडक्ट को परफेक्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे, और जबकि ऑनगोइंग प्रोसेस है। और एक और या चीज ये है एग्जैक्टली। मैं कि दो सर चीज ये लर्निंग हाँ, के लिए सौरभ वांट्स था टू से, ये। हाँ सौरभ, एक यस चीज यस बस सौरभ ऐड कर प्लीज। दे रहा हूँ सर, एक चीज ऐड हाँ कर दे रहा हूँ सर बस, कि सर ये लर्निंग के लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत सारे आइडियाज हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये बस स्टार्ट है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। लाइक जब मैं कैट या एमबीए क्लियर करके निकलूँ तो उसका जो उसके बाद जो स्टार्ट करूँ ना, तो वो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तरह से ट्रायल था ये हमारा, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और इस पे करना भी नहीं है कि इसमें मुझे लगता नहीं कि उतना मैं बिलियनर बन सकता है, मिलियनर बन सकता हूँ, तो ऐसा कुछ थीम लगता नहीं है। तो ये ट्रायल पे था कि कैसे कर सकते हैं, और आगे नहीं जो ठीक होगा है, वो और कुछ तो बेस्ट हो सीखने सकता मिला है ना, सर। ठीक है। बेसिकली रिज्यूमे एग्जैक्टली बिल्डिंग का था ये सर एमबीए के लिए हम लोग का। एग्जैक्टली रिज्यूमे ये चीज था। यस सर। सौरभ। मैं दो चीज बोलना चाहूंगा अमन और उज्जवल को, और जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। दिस इज, मैं जो भी चीज बोलता हूँ ना, मैं सिर्फ अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मैं कोई भी जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देता हूँ, और क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ बहुत सारी चीजों पे। तो मैं यंग एंटरप्रेन्योर को बस दो दो चीज बोलना चाहूंगा। पहला, मेकिंग मिस्टेक्स इज वेरी गुड, यू आर लकी कि यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। लोग तो मिस्टेक नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि वो टॉप ही करते रहते हैं, पानी तो में पैर ही नहीं डालते हैं। हाँ, ठंडा के गर्म पता ही वो नहीं। जिंदगी भर फर्स्ट ही आए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि अगर एक अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाएगा तो कैसे उसको टैकल करेंगे, और आएगा पूरे जिंदगी में, और उस दिन वो फेल होंगे, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट फेलियर, क्योंकि वो जिंदगी भर टॉप किए हैं। और जो बंदा जिंदगी भर फेल किया है ना, वही इवेंचुअली सक्सीड करता है। तो द फैक्ट दैट यू गाइज आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स इज, इट इज वेरी गुड, एंड यू कंसिडर योरसेल्फ लकी। ना कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, you are the luckiest person of on earth ki you are making mistake. Second point, don't love your idea. Idea is meant to change. जरूरी नहीं है कि बेचना है प्रोडक्ट, हो सकता है वो प्रोडक्ट बना ही नहीं है कस्टमर्स के लिए, और आपको इतना प्यार हो चुका है उस प्रोडक्ट से। जैसे क्लियर देखो भी बहुत बार चेंज किया है, स्नैपडील बहुत बार चेंज किया है, फ्लिपकार्ट चेंज किया है, अमेजन चेंज किया है, हर बंदा तो चेंज कर चुका है। तो व्हाई डू यू वांट टू लव योर, मेरे को एक मेरे भैया ने बोला था, ही इज एन एंटरप्रेन्योर बेस्ड आउट ऑफ यूएस। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आइडिया ना टी शर्ट की तरह है, कुछ टाइम बाद टी शर्ट खराब होगा, चेंज करना पड़ेगा आपको। तो मुझे तो याद है ये वो। और एक्चुअली वो अगर वाला कहावत है, लड़की बस और ट्रेन के पीछे नहीं भागना चाहिए, एक और आइडिया भी ऐड कर देते हैं उसमें। और कोविड इज द बिगेस्ट ट्रुथ, कोविड हैज मेड अस बिलीव कि यार टी शर्ट 5-6 महीना भी नहीं चलेगा, 2 महीने में टी शर्ट खराब होने वाला है, जल्दी चेंज करो, एंड यू डोंट हैव टाइम, कब नेक्स्ट कोविड आएगा नहीं पता। सो बी ऑन योर टिप्स। मैंने जैसे अपने टीम को ऑलरेडी बोल दिया, आखिरी साल है, क्लियर देखो का, कोई बात डरा नहीं, दिया सबको। हाँ नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा, क्या फर्क पड़ता है। ओके, हाँ यस अतुल सर प्लीज, देन रवि कैन ऐड एंड देन वी कैन क्लोज। यस, तो अमन और उज्जवल के लिए मैं बोल रहा था कि इनका जो आइडिया है, एक सेगमेंट को इन्होंने टारगेट किया, स्पेशली यंग लोगों को, यंग, तो उस आइडिया में दम है और काफी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि
कितने समय, जो बात हुआ ना कि 1 साल के बाद बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मैं हमेशा बिना मांगे एडवाइस देते रहता हूँ कि मेक श्योर कि आइडिया में अगर दम है तो लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार। जैसे कि इनके विशाल जी के ही जैसे ही इन्होंने पेड वाला मॉडल छोड़ा तो कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग बच गए। तो आप लोग को ये भी टेस्ट करते रहना पड़ेगा कि आपका वैल्यू क्या है। कल हम लोग स्टार्टअप वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, तो स्टार्टअप का सारा वैल्यूएशन नकली होता है, एक्सेल सीट वाला होता है। असली तभी होता है जब कोई फंडिंग मिलती है, तो किस प्राइस में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया या खरीदा बेचा, कि स्टार्ट, तो वहां पे वैल्यूएशन पता चलती है कि अच्छा ये बाइजू के इतने बिलियन डॉलर वैल्यूएशन हुई है। क्यों? क्योंकि एक फंडिंग हुई या एक्विजिशन हुआ। तो जब तक आप मार्केट में नहीं खेलोगे ना, तो ये पानी वाली बात कि आप पानी में पैर नहीं रखोगे तो पता ही नहीं चला कि आप तैर रहे हो कि आप मतलब कि हवा में उड़ रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। पानी में पैर रखना बहुत जरूरी है, और पानी में पैर रखिएगा तो ठंड भी लगेगी। हो सकता है कि पता चले थोड़ी देर ज्यादा कि नहीं, ये पानी तो बहुत गहरा है, मुझे लगा था नदी ये थोड़ी गहरी नहीं है, बट पता चला कि डूबने लगे। तो आपको ये भी नापते रहना चाहिए कि कितना पानी तक आप जा सकते हो और कितने के बाद आप डूबने लगोगे। तो वो सारी चीजें मेजरमेंट करते रहना चाहिए कि आपकी हाइट क्या है और किस हाइट तक नदी में आप जा सकते हो, पानी कितना ठंड बर्दाश्त कर सकते हो। तो ये सारी चीज टेस्टिंग करना पड़ेगा। जो एक्सपेरिमेंट की बात जो है ना, कि एक्सपेरिमेंट के रूप में लेते रहिए और ट्राई आउट कीते रहिए। ये मत डोंट, सौरभ राइटली सेड कि डोंट फॉल इन लव विद योर आइडिया। आइडियाज तो हर दिन लाखों आते रहते हैं, और जो आइडिया का एक्चुअली मार्केट प्लेस में क्या एक्सेप्टेंस है वो टेस्ट करते रहिए, हर दिन करते रहिए। अमेजन इज अ गुड एग्जांपल। अमेजन अपने चीजों को हर समय वो लोग अभी भी इनोवेट करते रहते हैं, चेंज करते हैं। और दुनिया की जितने बड़े बड़े फेमस कंपनीज देख ली, चाहे गूगल, फेसबुक, दे ऑल कीप रिलीजिंग न्यू वर्जन्स और कीप मेकिंग चेंजेस इन द मेन कोड इटसेल्फ। प्रोडक्ट को भी कभी कभी चेंज करते हैं। तो डोंट फॉल इन लव विद योर आइडिया कंप्लीटली। उसको ट्राई आउट करते रहिए नई नई चीजों को, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान दीजिए ताकि सस्टेनेबिलिटी। अदरवाइज लगेगा कि हम 1 साल लगा दिए, 2 साल लगा दिए और बाद में पता चला कि चलो बंद कर दिए, हॉबी था, कुछ नहीं हुआ। अगर आप सीरियस है तो मेक श्योर कि उसका रेवेन्यू मॉडल भी सोचना स्टार्ट कर दीजिए। रवि प्लीज। मेरा एक सवाल है अमन से और कौन, उज्जवल है। अच्छा उज्जवल, Yes. वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट्स लॉट ऑफ द टाइम इन डिस्कशन, या तो आप डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हुए या फिर मतलब क्या है, लेकिन ये सवाल है खाना मेरा। खा रहे थे वो साइड में बैठ के। हाँ नहीं, सॉरी सर। नहीं ये मेरा सवाल है, आज की नहीं, मतलब हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्कशन किए हैं जहाँ पे कभी कभी ये टॉपिक डिस्कस हुआ है। तो मेरा ये सवाल है कि आप अभी एट प्रेजेंट एमबीए एग्जाम को लेके, कैट को लेके सीरियस है या फिर स्टार्टअप को लेके सीरियस है? अभी बोला ना, इसने रेज्यूमे बिल्ड किया है इन्होंने स्टार्टअप करके। फाउंडर से बेसिकली सर मेरे जो सर मैं बेसिकली मेरे अंदर भूख भर चुकी है अभी स्टार्टअप की। अभी मैं कुणाल शाह के वीडियो देख रहा था। मैं बैकग्राउंड भी बताता हूँ क्यों ये सवाल पूछा मैं, क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 टॉपिक तो डिस्कस किए हैं प्रीवियसली। और फिर आप अगर एमबीए के लिए इंटरेस्टेड है तो ऑलमोस्ट 7 to 10 लाख का तो अगले 2 साल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने ऊपर में। अगर एमबीए कहीं से भी करेंगे, अगर इनकेस अगर आईएम से नहीं करते तो फिर भी 10 लाख तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। और अगर आईएम्स में भी जाते हैं तो फिर आप 14+ ही, हर एक का भी तो फिलहाल सबका फी उतना ही है, 14+ है। प्लस आपका मे बी अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो घर से देंगे, नहीं तो फिर बैंक से लोन लेना ही है। ये भी टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिस्कस किया है। तो वो चीजें आप एनालाइज नहीं करते हैं क्या, या फिर नहीं किया है क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। सर बेसिकली मेरी एज बहुत कम है और मेरी हमेशा से स्कूलिंग वगैरह, तो मेरे लिए जो लोगों के मैक्सिमम डर रहता है कि फियर एंजाइटी रहती है कि फैमिली का प्रेशर है, मैं उनका कुछ मतलब कि ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ फैमिली की तरफ। और दूसरी चीज है मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है, मेरी एज का वगैरह वगैरह है नहीं कि मैं तो अभी बुढ़ा होते जा रहा हूँ वगैरह, इस टाइप का कुछ है नहीं। पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, और एमबीए का भी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है बिकॉज कि अभी मेरा यही यूथ कम्युनिटी अच्छी हो गई और बेसिकली मैं लैक होता हूँ। लाइक मेरी कम्युनिकेशन इतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ मेरे इलाहाबाद की एरिया में मैं बात करूँ तो मेरी अच्छी कम्युनिकेशन है, बट एज कम्पेयर टू अभी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे बात करना है तो मैं थोड़ा लैक होता हूँ। तो एमबीए का मेरा इसलिए थोड़ा था कि एटलीस्ट मुझे एक सराउंडिंग मिल सके, नेटवर्क्स मिल सके,
और थोड़ी सी मैं एजुकेशन में अच्छा हो सकूं। मतलब मेरी मम्मी का भी कहना है तुम कुछ भी करो अपनी लाइफ में, बट अब मैं क्या बोलूंगा, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से तुमने बीकॉम किया, अभी तक तो तुमने सेकंड ईयर का भी एग्जाम नहीं दिया, तुम तो 12th पास आउट कहलाओगे, अनपढ़ कहलाओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। और वो तो एमबीए मेरे लिए इस वजह से था, और एमबीए बचपन से ही लगता था कि यार एमबीए ही मुझे करना है, तो एमबीए का ये सीन है। बट अभी क्या सीन बन रहा है कि मेरे आइडिया क्या है कि मुझे खुद का एक बढ़िया सा स्टार्टअप टाइप में या 28 29 में मुझे पैसों के लिए नहीं भागना है, मेरे अकाउंट में सीआर वगैरह पैसे वगैरह हो, तो मेरा ये है। बट प्रॉब्लम मुझे आती है मेरी टीम में, मेरी टीम इस टाइप की नहीं हो पाती है। वो कहीं ना कहीं गधे वाली हरकतें कर रहे होते हैं कि मुझे ये जॉब करना है, मुझे इंटर्नशिप करना है, और सब ये लोग हर सबने ये भी एक्सेप्ट किया है कि मैंने जो हम लोग ने युवा वेल आउट स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ हमने जो चीज सीखी हुई है वो चीज हमने कहीं इंटर्नशिप में नहीं सीखी है। वो एक्सेप्ट करने के बाद भी वो छोड़ देते हैं और बोलते हैं, और बहुत अजीब अजीब रीजन देते हैं इवन तो, और दूसरे की वजह से नेटवर्क तोड़ते हैं कि मेरे इस दोस्त की वजह से तुमसे लड़ाई होगी। मैं क्या बचपना हरकतें कर रहे हो भाई तुम, मतलब बड़े हो गए, यू आर 18 19। और फिर मुझे भी आता है कि नहीं अच्छा वो ये गधा भाग गया, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना है। उज्जवल, टीम कभी गधे नहीं होते हैं। सॉरी सर, जो मैंने बोला है। आई एम सॉरी सर। और एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, एक से आप जो बोले ना कि पैसे के पीछे हमको नहीं भागना है, अगर आप पैसे के पीछे नहीं भागेगा तब आप स्टार्टअप कर ही नहीं सकते। पैसा का भूख जो होता है ना सबसे ज्यादा होना चाहिए, तभी मेरे ख्याल से इस सक्सेसफुल कोई आई डोंट अग्री अभिषेक। सब्स्टिट्यूट मेरा नेम के पीछे, प्राइमरी नहीं होना चाहिए पैसा। या एग्जैक्टली, और नेम चाहिए सर, तो सबको चाहिए। पैसा भागेगा तुम्हारे पीछे, तुमको थोड़ी भागना है। एक गाना था अभिषेक, कब तक भागोगे, कोई अंत नहीं है, पैसे के पीछे कब तक भागते रहोगे। जीरो कम पड़ जाएगा, पैसा कम नहीं पड़ेगा। अभिषेक एक गाना था, एक हिंदी गाना था, ये पैसा पैसा पे करती है, पैसे पे ही मरती है। तो क्यों पैसा पैसा करती है, ये पैसे पे क्यों मरती है? सर पैसा पे तो सर सब मरता है, आपके पास पैसा नहीं रहता तो आप नहीं मरता है, सेकंड प्रायोरिटी है, वही तो बोल रहा हूँ इसीलिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? नहीं, पैसा से आप कुछ खरीद सकते हैं, इसलिए पैसा एक करेंसी है जिससे आप चीजें खरीद सकते हैं। बट बहुत सारी चीजें हैं जो प्राइसलेस है, आप प्यार पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। क्या बात करते हैं सर, आजकल की तो नहीं मेरा बात सुनिए ना, आजकल की 99% गर्लफ्रेंड, आजकल की 99% गर्लफ्रेंड वो पैसे से ही आती है। नहीं बट वो प्यार नहीं आता है ना, वो तो मटेरियलिस्टिक गर्लफ्रेंड आ जाती है। विशाल आजकल प्यार है कहाँ? अच्छा जस्ट वन पॉइंट, एक मिनट, हाँ रवि जी कुछ बोल रहे हैं, हाँ बताइए रवि जी। I just want to suggest to these people, और मे बी अतुल सर और सौरव कुड, और आप भी मे बी उसको एक व्यू देंगे। मेरा ये व्यू है कि अमन, आप लोग अगर आइडिया अच्छा है तो व्हाई डोंट यू गो इनटू इंक्यूबेशन सेंटर rather than going for the MBA। आप इंक्यूबेशन सेंटर में भी जा सकते हैं। नहीं अभी ये लोग टीम ही फॉर्म कर रहे हैं, टीम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका, तो अभी और क्या करेंगे, अभी तो टीम ही बन रहा है इनका। क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर आप अरे तुम बोल रहे हो नहीं है, वो बोल रहा है, तो इसलिए भी तो कॉन्फ्लिक्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि गधा बोल रहा है टीम को, मतलब कोई टीम को देखिए सर टीम पे मेरे टीम को गधा बोलने का मीन्स ये नहीं था कि मैं पूरी टीम को बोल रहा हूँ, कुछ पर्सन को बोल रहे हो। नहीं हरकतें कुछ गलत करते हैं। मारेगा भाई, तुम अमन बहुत मारेगा। आपकी टीम नहीं है, फिर टीम तब हुई ना कि वो आपको गधा बोल सके, आप लोग गधा बोल सके तब। एग्जैक्टली सर, कोई मुझे गालियां नहीं देता है, मैं चाहता हूँ उनसे बोलता हूँ मुझे गालियां दो, कोई गालियां नहीं दे रहा होता, चिल्ला कोई नहीं रहा होता है, मैं बोलता हूँ मेरे पे चिल्लाओ। तुम्हारी गलती है ना कि तुम गधा पहचान नहीं रहे हो इंटरव्यू में, तो गधे वो थोड़ी है। सर शुरुआत में आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको ही बोल रहा है इंक्लूडिंग हिम। या मुझे भी बोलो ना, गधा बोलो, गालियां दो, मैं चाहता हूँ मुझे दो, तो प्रॉब्लम यही आती है। तुम अपने आप को दो पहले, तब बाकी लोग भी देगा फिर, तब अपने आप को डेली देता हूँ सर मैं। अच्छा ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं कल थोड़ा सा, आई थिंक इलैबोरेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। आई थिंक ये दो चीज मनी प्रायोरिटी वाला भी बात कर लेते हैं। आई थिंक कि स्टार्टअप पे बात कीजिएगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, यही डिबेट टॉपिक रहेगा हमारा कल का।
कि मनी शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और उस स्टार्टअप का क्या हुआ जिसका ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, उस स्टार्टअप का क्या होगा जिसका ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, आई मीन व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन अल्टीमेटली, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे ना क्लैरिटी भी आ सर जाएगा। एक मिनट जो ये क्या रवि सर क्या बोले थे क्यूबाइड वाला, मुझे समझ में नहीं आया, एक बस 2 मिनट बोल नहीं दीजिए नहीं, वो उसको। एक इंक्यूबेशन होता है कि जिसमें मतलब यू कैन गेट नर्चर्ड अ बिट, बट उसके लिए थोड़ा टीम वगैरह पहले ठीक होना चाहिए, टीम में लड़ाई नहीं होना चाहिए पहले। अच्छा अच्छा, मतलब टीम में 2 लोग भी हो लेकिन वो ये रहे 2 चीज लोग, है ये नहीं कि कि आप जैसे IIM बैंगलोर से MBA करने चाह रहे हैं और आपका आइडिया ऑलरेडी है, टीम ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी है फॉर्मेशन, तो आप उसके इंक्यूबेशन सेंटर में चले जाइए। वहां पे आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा, प्लस दे विल सपोर्ट यू विद द सेम नेटवर्क, और वहां पे अलुमनी नेटवर्क का एक्सेस रहता है, प्लस दे प्रोफेसर्स गाइड करते हैं आपको 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, एंड दे विल बी लाइक गाइडेंस प्रिंसिपल फॉर द लॉन्ग लाइफ। तो आप 14-15 लाख रुपए लगाने से अच्छा है कि आप अगर है, मतलब वही बोलता हूँ कि अगर आपको स्टार्टअप करना ही है और आइडिया ऑलरेडी बना हुआ है, तो यू गो देयर, वो ज्यादा मतलब अच्छा एक और वो भी वे है, मैं ये नहीं बोला कि अच्छा वे है, वो भी एक वे है। करेक्ट, व्हाट रवि इज सेइंग ना कि इंक्यूबेशन में एडमिशन लीजिए इंस्टेड ऑफ MBA PGDM जो होता है, अभी तो MBA ही हो गया आई थिंक, और वो आपको एक टैग ऑप्शन भी है। मिल जाएगा, जिस टैग के लिए अगर मतलब टैग के लिए अगर जा रहे हैं तो फिर टैग भी मिल जाएगा। तो अभी इस पे कल बात होगा कि टैग चाहिए कि पैसा चाहिए। ठीक है, टैग का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको ट्रुथ बता देता हूँ। IIM लखनऊ ने कम से कम नहीं तो 100 बार मुझे अप्रोच किया, सौरभ प्लीज हमसे इंक्यूबेशन ले लो, प्लीज हमसे इंक्यूबेशन ले लो, हमने नहीं लिया, कोई फायदा नहीं है। वो लोग नहीं उल्टा आई थिंक बिजनेस बना डिपेंड के करता है रखे हुए हैं। सौरभ, नहीं तो टेक ले हमारे लेते एज में हैं, आई मैंने गेस बोला नहीं मैं फायदा क्यों है। दूं? नहीं सौरभ, तो हमारे एज पहले में की भी बात नहीं है, कर रहा हूँ, नहीं पहले की पहले भी बात। नहीं, पहले एज इन मैं स्टूडेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, जो 18-20 साल के लोग हैं ना, उनको फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। ये जो 35 वाले जो मिड लाइफ क्राइसिस में है ना, उनको फायदा शायद ना हो। तो ये थोड़ा सा है, तो उनको थोड़ा सा वो टैग मिल जाएगा ना, तो वो तो एक जो वो 0 पे अटके हुए अपने टीम नहीं बना पा रहे हैं, उनको टीम बन जाएगा एटलीस्ट, तो वो सब थोड़ा सा तो फायदा है। ठीक है, चलो ठीक है, इस पे कल बात करते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है, ये मनी वाला भी बात करते हैं और टैग वाला रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ थोड़ा प्रायोरिटी पे लिया जाए कल। चलिए देन, गुड नाइट आज के लिए, ओके बाय बाय।